نتیق رشید صاحب کو دیکھ لیتے ہیں یہ حضرت جو ہے وہ مومن ہے یا نہیں ہے. نتیق رشید صاحب آپ کا استقبال ہے. جی بھائی ہیلو. جی جناب, مومن ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ. مومن ہے ماشاء اللہ. جی اور کہاں سے ہے جناب آپ؟ جی میں انڈیا سے ہوں, چھتیس گڑھ. چھتیس گڑھ سے ہے. اوکے, کس جی ٹائپ کے مومن ہیں آپ؟ ہم بھائی دیوبندی ہے, 5 ٹائم بریلوی نمازی ہے؟ والے مومن ہیں. ہم صرف مسلم 5 ہیں ٹائم بھائی. نماز ہے. جی اچھا, یہ بس مسلم والے مومن ہیں ہمارا آپ؟ جی جی ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. اچھا, یہ آپ جیسے لوگ کہاں پہ ملتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ؟ نہیں, ہم تو بس چھتیس گڑھ آ جائے, یہاں پہ کئی لوگ مل جائیں گے ہمارے جیسے, اور اچھا, صرف جماعت میں بھی مومن مل والے. جاتے ہیں. ہاں جی, اچھا, ہمارے جیسے بہت جماعت مل میں بھی جائیں گے, مل ایسا جاتے ہیں؟ نہیں ہے. جماعت میں جاتے ہیں ہاں, آپ؟ نہیں میں جماعت میں نہیں جاتا ہوں. جیسے جماعت میں بھی ہے ہاں. اور سنی مسجد ہوں. میں بھی ہوتے ہیں, ہر فرقوں میں ہے ایسے لوگ جو خود لیکن کو آپ کہتے ہیں لوگوں ان کا کی ایک تعلق خاص کسی فرقوں سے نہیں ہے. جی, آپ لوگوں نے آج تک اپنی خاص ایک مسجد نہیں بنائی جہاں پہ مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں, میں بریلوی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں سلفی ہوں. دیکھیے ایسا کوئی جی مسجد اس بنائی کا آپ لوگوں نے آج تک؟ سنیے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم مسجد بنا دیں تو کل کے دن وہ ایک ہوں. نیا فرقہ کا شکل لے لے گا, اور ہم نہیں چاہتے کہ نہیں, مسجد کیسے فرقہ بنے. ہم کیسے فرقہ فرقہ پرست نہیں ہے. کیسے فرقے کا؟ جیسے کہ نہیں تو جیسے کہ ایک مسجد ایسی بنائے جہاں پہ آپ جیسی سوچ والے ہو, جہاں پہ کوئی نہیں یہ نہیں الگ کہے سے میں کیوں, بریلوی ہوں. نہیں میری ایک بات مسجد سن رہے یار آپ. مسلمانوں کے لیے, صرف ہاں مسلمانوں کے ہاں لیے. سنیے, جیسے میں جہاں مسجد میں جاتا ہوں وہ مسجد ہے جامع مسجد. وہاں نہیں لکھا ہے کہ اوکے, سنی کی ہے, شیعہ کی, اور یہاں پہ اہل حدیث بھی آتے, سنی بھی آتے, سب آتے ہیں. سب آتے ہیں. اہل جماعت والے سنت بھی آتے ہیں. والجماعت نہیں لکھا جی ہے مسجد میں؟ کچھ نہیں لکھا ہے, جامع مسجد لکھا ہوا ہے. اچھا, جامع مسجد لکھا ہے, کیونکہ ٹھیک ہے. مجھے یہ جی بتائیے, جامع نماز مسجد جب مطلب پڑھتے ہیں بڑی وہ, مسجد. جی مجھے پتا ہے بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جی سے, جی آپ مجھے یہ بتائیے جس مسجد میں آپ جاتے ہیں, جامع مسجد جو ہے, وہاں کے جی امام صاحب جب نماز جی پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کدھر باندھتے جی ہیں؟ دیکھیے, جیسے کہ نا ہمارے یہاں کبھی کوئی یہ امام بن گیا, اہل حدیث بن گیا, کبھی کوئی بن گیا, جیسے کہ امام نہیں ہوتے ہیں بھائی تو کوئی بن گیا, اور اتنا وہ ہاتھ بڑا ایسے دھوکہ نارملی مت دو, نیچے بھائی میں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں, اتنا کیونکہ بڑا ہم جو جگہ اتنا میں بڑا دھوکہ مت دو. بھائی میں اتنا مسلم بڑا. ہوں. بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں بھائی جان آپ کے جو امام ہے, کبھی جب اہل حدیث آ جاتے ہیں, یا شیعہ کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ شیعہ کے پیچھے ایکچولی کیا ہمارے یہاں شیعہ نہیں ہے, مسلمانوں کی آبادی کم ہے, اور جو ایک دم کٹر سنی ہے نا, تو مسجد ہے یہاں پہ, وہ ابھی ڈیوائڈ ہو گیا ہے تو ان کے مان الگ لیجیے ہے. اگر امام بن گئے, شیعہ بن گئے, شیعہ امام بن گئے, تو آپ ان کی ابتدا جی میں نماز ادا کریں گے؟ یا احمدی مسلم آ گئے, احمدی مسلم نہیں, احمدی نہیں یا ہے, قادیانی معاف آ کیجیے جائیں گا, گے تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ قادیانی احمدی ان کے پیچھے نہیں. اگر ان کو چھوڑ کے صرف وہ نبی پہ, آخری نبی کو مانتا ہے, تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا, چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو, کیونکہ میرا کوئی فرقہ سے واسطہ نہیں ہے. اور قادیانی اور احمدی وہ تو صاف کہتے ہیں نا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی ہے, خاتم النبی کا انکار کرتے ہیں, تو ہم ان کو مومن نہیں مانتے. نہیں, ہوں. اس میں قادیانی بھی ہیں جو کہتے ہیں لا نبی آبادی, اس پر ایمان ان کا بھی ہے, لا نبی آبادی. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ محمد عربی نے کہا تھا کہ میرے پروفٹ بعد کوئی محمد نبی صلی نہیں آئے اللہ گا. علیہ وسلم آخری نبی ہے, اس چیز پہ ایمان رکھتے, اور وہ اس کو مانتے ہیں, اس کو نہیں مانتے, کیا نام ہے اس کا, احمد قادیانی جو بھی ہے, اس کو اگر نہیں مانتے, صرف وہ نبی, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے, تو بے شک میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا, مجھے کوئی دقت نہیں ہے. اور باقی میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتا کہ وہ اہل حدیث سے کہ سنی ہے. جو آپ کی طرح آپ جانتے ہیں, یا آپ بتلا پائیں گے کہ آپ کی طرح کتنے مسلم ہوں گے؟ میرے طرح یہاں پہ بہت لوگ ہیں جو میرے کانٹیکٹ میں, میرے بھائی ہے, میرے رشتے دار ہے, وہ باہر بھی رہتے ہیں, سب ایسے ہی ہے. اور جیسے کہ ہمارے نبی نے بھی تو کہا تھا نا کہ دیکھیے, ہمارے نبی نے کتنے صاف صاف کہا ہے کہ جیسے کہ بولا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے, ٹھیک ہے, 73 میں سے ہوں. 72 فرقہ جہنم میں جائے گا. اور دیکھیے ایک ہوں. راستہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ اچھا, فرقہ ایک منٹ کون ایک ہوگا منٹ جب ایک منٹ ایک منٹ جی ایک منٹ بھائی دیکھو, اسی پہ غور کرو آپ کہ رسول جی اللہ نے کہا جو 73 ہے اس میں سے 72 فرقے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے, ہے نا؟ جی جی جی
मतलब एक फिरका जन्नत में जाएगा, जी तो आपको एक फिरके में तो होना पड़ेगा। जी, तो उसकी मैं दलील देता हूँ, ठीक है, मैं बोल दूं? नहीं, मतलब इतना तो मानते हो ना कि एक फिरके में तो आपको रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, फिरके नहीं, देखिए मैं उसकी दलील दूंगा, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कितने मैं फिरके डिबेट नहीं बताए कर रहा हूँ रसूलुल्लाह प्लीज। ने? हाँ, 73 मैं फिरके हम आपसे होंगे। डिस्कस, हाँ, जी जी, उसमें से क्या कहा रसूलुल्लाह ने? कि एक जन्नत में जाएगा, ठीक है, एक मतलब 73 में से एक फिरका जन्नत में जाएगा, तो आपको एक फिरका, जन्नत देखिए में वो जाने के फिरका हम लिए, लोग को समझना होगा। नहीं नहीं, सुनो, अरे देखिए भाई कंडीशन वो सुन लीजिए। बात सुनो 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 मेरे भाई सुनो, जी उसको समझना वो एक अलग टॉपिक है। मैं कह रहा हूं जी उसके लिए सबसे पहले आपको एक फिरके में आना पड़ेगा। फिरके में, देखिए मैं इसकी दलील दे रहा हूँ ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, कि साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, तो वो फिरका कौन हम्म, होगा, हाँ, समझ रहे, वो कौन होगा जो जन्नत में जाएगा? हम्म, ये तो अगर आप वसल्लम बोल ओके, देते कि वो सुन्नी होगा, हम्म, तो हर कोई बोलता खुद को नहीं सुन्नी। नहीं, वो नाम बोलते नहीं, अहले देखो, हदीस होगा, तो नाम नहीं अरे बताया वो, भाई ये रसूलुल्लाह को भी, डेफिनेशन दी है। रसूलुल्लाह को भी, जी सुनो 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 सुनो, वो तो रसूलुल्लाह जी को भी पता नहीं था नाम के आगे कौन कौन से फिरके बनेंगे, वो सवाल नहीं है। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि आपने कहा मैं कोई फिरके से नहीं हूं, लेकिन जी, रसूलुल्लाह खुद आप जो दलील पेश कर रहे हो उस हिसाब से आपको एक फिरके में होना पड़ेगा, तब जाके भाई आपकी आप जन्नत की कह रहे, टिकट क्या कंफर्म मैं अपनी होगी। दलील रख नहीं तो दूं? आप फिर आप वेटिंग बोल लिस्ट, दीजिएगा। सुनो ना, जी आपको या तो फिर वेटिंग लिस्ट या तो आरएसी में रहोगे, और बाद में जाके वो ट्रेन जब स्टार्ट होगी तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी। भाई, पहले मैं ये तो मानिए कि अपनी आपको दलील एक रख लूं? फिरके में तो रहना पड़ेगा। पहले ये तो नहीं मानिए नहीं, एक सुनिए फिरके में सुनिए रहना भाई, पड़ेगा। तो जब हम्म, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो फिरका कौन होगा, तो साहबा ने हाँ, क्या कहा ये भी तो सुन लीजिए, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया क्या वो कहा? कामयाब कौन होगा। कि देखो मेरे कौन होगा? सहाबा जो है, सुनिए, मेरे सहाबा जो है वो सितारों के मानिंद है, तुम किसी नहीं, गलत ये एक की भी हदीस में नहीं इब्तिदा है, कर लो, गलत कामयाब हो ये जाओगे। सुनिए हदीस में नहीं सुनिए, है, गलत ये आप नहीं हदीस में नहीं है। मानेंगे, सुनिए नहीं सुनिए, आप नहीं मानेंगे मानेंगे। आप दलील, अ, सुनो सुनो मेरी बात भाई, मेरे जी भाई नातिक रशीद, सुनो, जी जी जी, ये जो आप बोल रहे हो ना वो इस हदीस में हाँ है ही नहीं जो आप पेश कर रहे हो, जी, ठीक है कि ना, तो भाई ये दूसरे रसूलुल्लाह हदीस में से इसका पूछा दलील गया दिया गया है कौन ना। सा। हाँ नहीं, हाँ, ये हदीस से रिलेटेड ही नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरा बुनियादी सवाल नहीं समझ रहे आप। उसकी जी क्या खुसूसियत होगी वो तो रसूलुल्लाह ने कह दिया, जो मेरी और जी, मेरे सहाबा की या खुलफा इब्तिदा राशिदीन की करेगा। सुन्नत पे चलेंगे, जी। हाँ, अना सुन्नत पे अलैहि व चलेंगे, ठीक अस्हाबी, है। तो क्या, हदीस का, क्या असहाबी, क्या, सुनो जी, जी अना सुनो अलैहि व सुनो, अस्हाबी। तो क्या क्या सहाबी राशिद, किसी फिरकों में मानते थे? देखिए नहीं, इख्तलाफ जो है ना सहाबी, हर वक्त में अरे था। मेरे भाई, अबू रुको उमैया, रुको क्या रुको, नाम है वो? जी राशिद भाई थोड़ा सा राशिद रुको, खामोश हो जाएं। जी साहिल भाई कुछ सुनो कह रहे हैं, पहले उसको सुन ले, सवाल। फिर उसका जवाब दे दीजिएगा आप, ठीक है? जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ठीक है, हम्म कि हम्म, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। उस जी एक की सिफत रसूलुल्लाह ने बताई, नाम नहीं बताया, लेकिन उस एक में या जन्नत में जाने के लिए आपको एक फिरके में आना पड़ेगा। आप अगर ये कहते नहीं, हो कि मैं सुनिए फिरके सुनिए, को, अरे यार हद है, मतलब आप सही और रसूलुल्लाह गलत। मैं, देखिए भाई, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, तो हम हम्म, लोगों को देखना पड़ता है। आप हदीस को कैसे लेके चलते हैं, पहले ये बताइए, हदीस कैसे को जो समझते लिखा है कैसे वही हैं? लेके चले। क्या अरे हम उसको मेरे भाई वैसे ही मान इसमें, लेंगे? राशिद मेरी बात सुनो, जी आपको सिंपल सी चीजें समझ में आती है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं 73 फिरके होंगे, उसमें से हम्म एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जो है जहन्नम में जाएंगे। तो एक जो फिरका हम्म, जन्नत में जाएगा उसके लिए जन्नत में जाने के लिए फिरके में आना पड़ेगा ना आपको एक। एक यार बात इतनी बताइए छोटी सी आप, सुनिए बात भी सुनिए, आप लोगों को नहीं समझ में आते। ठीक है, ठीक है, आप मुझे समझाएं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अच्छा, मैं एक एक बात छोटा बताएं। मैं छोटा एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक छोटा एग्जांपल जी देता हूं। 5 सेब है, 3 सेब है, जी एक लाल, जी, एक एक हरा, और अभी हम्म, काले सेब भी हम देखते हैं वीडियोस में, ठीक है। जी रसूलुल्लाह कह रहे हैं या कोई कहता है कि एक सेब जो है वो मैं पसंद करता हूं, ठीक हम्म, है, बाकी जी 2 सेब जो है वो कचरे के डब्बे में डालूंगा, एक सेब को पसंद करूंगा। तो जो जी मुझे पसंद है वो सेब होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे नहीं, जी, मैं ठीक है, सेब हूं मैं ही भी एक नहीं, एग्जांपल देता लेकिन, हूँ, सुनिए, हाँ, मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ। कहा जाता है कि अगर जैसे मैं सीएस कर रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी को सीए कर रहा हूँ, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हम्म, मान लीजिए,
सी ए निकालना ओके है तो आपको ना इस स्टेज से निकलना होगा, और जो क्लियर ओके करेगा वो सी ए बनेगा, उसका कंडीशन रख दिया ओके गया। और उसका 3 हाँ हाँ स्टेज होता है, फाउंडेशन, ठीक है ठीक है, इंटरमीडिएट और हम्म प्रोफेशनल, उसका फाइनल। तो एक इंसान हम्म आता है फाउंडेशन क्लियर करता है, इंटरमीडिएट नहीं कर पाता, और जो फाइनल जो हम्म करते हैं ना वो 8% होते हैं सिर्फ, ठीक है, नहीं बाकी परसेंटेज तो नहीं, फेल हो लेकिन जाते हैं। आपको सुनिए स्टूडेंट सुनिए, सुनो तो मेरी बात सुनो तो मेरी, अरे जो भाई पॉइंट टू एग्जामिनर पॉइंट है, चलो, सुनिए भाई रुको मेरे रुको बात सुनिए, रुको रुको एग्जामिनर रुको ये तो नहीं रुको बोला रुको नहीं, गलत जी। एग्जांपल है, रुक जाओ मेरे भाई रुक जाओ। आपका ये एग्जाम्पल भाई असल में गलत दे रहे हैं आप प्रॉब्लम, अरे भाई मैं तुम्हारे एग्जांपल जी के हिसाब से चल रहा हूँ, 2 मिनट रुको। प्रॉब्लम जी ये है ना कि आप लोग को ये पता नहीं होता है कि हम लोग कैसी बेवकूफी वाली बात करें। आपने अच्छा सीए स्टूडेंट की मिसाल दी, ठीक है, जी कि उसमें लेवल से इंटरमीडिएट और उसके बाद आपने और एक लेवल बताए हैं। जी उस लास्ट लेवल में पहुंचने के लिए कम से कम आपको सीए का स्टूडेंट तो होना पड़ेगा ना। जी। हाँ तो वो इंजीनियरिंग मुस्लिम वाला हुआ ना, बोलेगा ला इलाहा नहीं, इल्लल्लाह मोहम्मद अरे रसूलुल्लाह, ये स्टूडेंट मुस्लिम होने की है जी। स्टूडेंट होना पड़ेगा ना आपको, बिना हाँ स्टूडेंट हुए नहीं जी हो सकते ना। उसी जी, तो तरीके से रजिस्ट्रेशन रसूलुल्लाह ने कराते हो जब उसका। कहा, हम्म हाँ तो सुनो मेरी बात, उसी तरीके जी से जब रसूलुल्लाह कह रहे हैं 73 फिरके, सबको उन्होंने किस में लेके आया है, फिरकों में, ठीक है, 73 सुनिए, फिरके 73 फिरके अरे होंगे। हाँ होंगे, इस्लाम के उसमें से शुरुआती दौर कितने में कोई जहन्नम में फिरका था? जाएंगे? एक बात बताइए, अरे चलिए हम भाई ना कितने इस्लाम के कितने, नहीं मुझे वो सबसे नहीं लेना देना है कि फिरका था भाई, या आप नहीं जो है था। ना, पता है र, आप ना बात असल में घुमा रहे रसूलुल्लाह हो, की समझ रहे हो, आप भी घुमा जानते रहे हो हो, सच क्या, अब बात घुमा रहे हो। ये तो घुमा मुझे रहा हूं बोल मैं लेने दीजिए, यार, फिर आप बोल दीजिएगा, या फिर मैं आप नहीं बोल लीजिए बोलने फिर दे मैं सकता हूं बोलता ना हूँ आपको। जी। नहीं ठीक है, अच्छा, आप बोल लीजिए इसका फिर। सिंपल, हाँ मैं बताता हूं कि आप अगर ऐसा जी, बोल रहे हो तो मैं कहूंगा रसूलुल्लाह को अपनी बात रखने भी नहीं आती थी। अगर फिरकों का अस्तगफिरुल्लाह बनाना भाई। गलत है, अस्तक नहीं, जी सुन लो ना भाई, दलील सुन लो, अस्तगफिरुल्लाह बोलने से नहीं हाँ होगा। अगर फिरकों में नहीं बंटना है तो रसूलुल्लाह को जी यह साफ साफ कहना चाहिए था कि भाई लोग फिरके बनाएंगे, तुम फिरकों में मत पड़ना, जो फिरके बनाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे, जो फिरकों में नहीं पड़ेगा वो जन्नत में जाएगा। रसूलुल्लाह को तो अपनी, अच्छा, या तो आप जो कह तो रहे हो नबी ने उस क्या हिसाब कहा से था, रसूलुल्लाह को अपनी वो बात, हदीस पूरा कर रसूलुल्लाह दीजिए ने आप फिर। कहा, मैं कह रहा हूं ना, हाँ रसूलुल्लाह ने कहा कि 73 सेक्स बनेंगे, उसमें से हाँ 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत हाँ। में जाएगा, और रसूलुल्लाह ने उसकी सिफत बताई और है। मैं और कह उस रहा सिफत हूं क्या बताइए सिफत से मुझे लेना देना ही नहीं है, सिफत से पहले भाई। बात यह है कि आपको, सुनो मेरी बात, जी, आपको पहले फिरके में आना नहीं पड़ेगा, और नहीं उस फिरके में भाई वो सिर्फ, सिफत यार बताइए, और कसम वो से यार, सिफत वाले लोग ना आराम से अलग हो जाएंगे उसे। देखिए आप अरे जो बता सिफत रही है, उस अहले फिरके में होना हदीस जो चाहिए है, ना, सुनिए, ये अहले सिफत उस हदीस जो फिरके में बना होना चाहिए, मेरे भाई, ये जो सिफत उस बरेली फिरके में आया होना चाहिए। राशिद मेरी बात सुन, जी। सिफत उस फिरके में होना चाहिए ना, वो वाली सिफत। देखिए भाई, फिरके में नहीं होना चाहिए, मेरे, और फिरका अरे तो जो है जो रसूलुल्लाह बन को, रहा है मेरे, अरे भाई मेरे तुमको पता है कि रसूलुल्लाह को पता है? भाई, आपको पता है। हाँ मेरे आप को नहीं बोल रहे हो पता ना, है, तो आप अपनी रसूलुल्लाह को बात पे पता एक है। मिनट रुक जाइए भाई, सुनिए एक सेकंड मेरे प्रूफ भाई। दिया ना, ये जो, रसूलुल्लाह कह रहे हैं सुनिए कि सुनिए 73 सुनिए मेरे फिरके भाई। होंगे, 72 जहन्नम में अच्छा जाएंगे, होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, तो एक जन्नत में फिरका जो जाएगा। जन्नत में जाएगा, आपको जन्नत में जाने के ये लिए एक फिरके में जाएगा, आना ये पड़ेगा। फ्यूचर टेंस है भाई, ये फ्यूचर टेंस है कि फ्यूचर 73 टेंस, फिरके आप अभी फ्यूचर में ही हो होंगे। ना, आप देखिए फिरके, सुनिए, आप फ्यूचर में फ्यूचर हो में क्या सुनिए, रसूलुल्लाह के अभी जमाने में कितना हो? फिरका है, अभी कितना फिरका है, आप आप रसूलुल्लाह के जमाने में हो या फ्यूचर में हो? करेंटली कितने फिरके हैं? आप रसूलुल्लाह के जमाने में हो या फ्यूचर में हो? सुनिए, मैं ना एकदम फ्यूचर में नहीं हूँ जहाँ पे 73 फिरके हैं। अभी हाँ कितने फिरके 73 चल नहीं रहे हैं, है आप ये बताइए। भाई, अभी कितने 73 फिरके हैं? नहीं है, लेकिन सुनो मेरी बात, वो आप जी, बताना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं कि देखिए मेरे आप भाई, तो फ्यूचर आप में मुझे हो, बोलने देंगे तब मैं सुनो ना बताता हूँ। मेरे भाई, मैं नहीं बताने दूंगा जब तक आप ये नहीं मानोगे कि उस एक जो शख्स जन्नत में जाएगा उसको एक फिरके में होगा। अगर आपको इतनी भी समझ भी नहीं है तो कम से कम इतना कह दो कि रसूलुल्लाह को अपनी बात रखने भी नहीं आती थी, क्योंकि अगर फिरकों में जाना ये गुमराही है तो रसूलुल्लाह को साफ साफ ये कहना चाहिए था कि 72 फिरके होंगे, जो फिरका बनाएगा, जो फिरके में पड़ेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो फिरके में नहीं पड़ेगा, जो फिरका नहीं बनाएगा वो जन्नत में जाएगा। रसूलुल्लाह तो उसको भी जो जन्नत में जाएगा उसको फिरकों की लिस्ट में लेके आ रहे, और आप बोल रहे हो कि मैं अच्छा, फिरकों को नहीं मानता, तो आपको मालूम क्या रसूलुल्लाह को मालूम? ये ठीक है, जिद क्यों मैं करते इसी हो आप इसी लोग? बात में, जिद पे नहीं, सेक्ट्स मतलब क्या, डिवाइड होना, ठीक है।
हाँ آپ کسی ठीक چیز है. کو چھانٹتے ہو، سنیے، وہ اپنی کوالٹی کے حساب سے چھٹتا ہے. اب سیب کا اگزامپل دے رہے تھے، ہم مانتے سیب ہے، شروع میں ایک تھا، وہ دھیرے دھیرے خراب ہونے لگا. آپ کیا کرتے ہو؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو سیب کا پیکنگ ہوتا ہے، یہ کیا میں ہوتا ہے نا، خراب کی یہ بنیاد پہ سنیے میں سنیے ٹھیک ہے، خراب کی سیب بنیاد کا پہ سائز کے سنو حساب میری سے نا، بات. سنیے سیب کا سائز نہیں کے حساب سے اس میں کو الگ الگ خراب ڈبے کی میں پیک کیا جاتا ہے. میرے اور بھائی یہ جو سنو ہوتا ہے نا، میں یہ آٹومیٹک ہوتا ارے ہے، رکو اس کے یار سائز اس کے. السلام علیکم نثار یار بھائی. اتنی ہاں ٹروتھ ایس کا میں 1 منٹ رک جائیے بھائی. نثار صاحب آپ کون سے مسلک سے نیٹ ختم ہونے آپ والا کون سے مسلک سے آپ ہے. جی سر میں سننی ہوں. سننی ہے نا. اچھا مجھے کم سے کم یہ ناطق رشید بھائی والے جو مسلمان ہوتے ہیں نا، سر صرف ہم نیٹ مسلمان ہیں ہم یہ نہیں مانتے. مجھے ایک بات بتاؤ کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جو ہے جہنم میں جائے گا. اس کا جی مطلب جو فرقۃ الناجیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو نجات ملے گی، وہ نجات ملنے کے لیے آپ کو ایک فرقے میں ہونا پڑے گا نا، جو صحیح والا فرقہ ہے. جی جی نثار صاحب آپ نہیں ساحل صاحب آپ ان سے وہ بات کریے گا، میرا کچھ پوائنٹس ہے. ہیلو. نہیں میری یہ بات میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ مسلمانوں کے اندر اتنی چھوٹی سی سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ اپنی بات کو رسول اللہ کی بات کے اوپر رکھتے ہیں. یہ جی کیا جی معاملہ ساحل ہے؟ صاحب ہم بات کریں گے ساحل صاحب بالکل کریں گے. بس میں بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا آپ کے پاس آؤ، لیکن آپ باہر نکال دیتے، آپ لیتے نہیں میرے کو. آپ نبیدہ ہے نا؟ کیا آپ چیز؟ کون نبیدہ نویدا؟ ہے نا؟ نبیدہ یار، کون نویدا؟ نبیدہ نہیں آپ مجھے کال کون کرتے تھے جو، کون نویدا؟ ارے مجھے کال کرتے تھے نبیدہ، نہیں نہیں سر زبیر میں قریشی. نہیں. اچھا تو چلو کوئی نہیں. ساحل صاحب آپ نے ایک بات اچھا بولی تھی، مجھے آپ یہ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے ایک میں بات آپ نے بولی تھی؟ میں سب بات کروں گا. پہلے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی جو یہ حدیث ہے کہ 73 فرقے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، تو ایک جنت میں جانے کے لیے آپ کو فرقے میں ہونا پڑے گا کہ نہیں ہونا پڑے گا؟ ہیلو سر، وہ آپ نے راشد صاحب سے بات کری ہے نا، تو ان سے آپ سے پوچھیے. پوچھ آپ رہا ہوں کیوں آپ رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے؟ جی بالکل مانتے سر، لیکن آپ نے راشد صاحب تو سے اس بات کا کری کیا ہے، مطلب ان ہے؟ سے کریے. ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی میں تو بتاؤں گا سر، آپ نے تو راشد صاحب سے پوچھا ہے تو میں ارے کیا میں بتاؤں. ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، ٹروتھ ہیز کم آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی کیا پوچھ رہے؟ 73 یہ حدیث جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ 73 فرقے جو ہے مسلمانوں میں ہوں گے، 72 جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، اور رسول اللہ نے اس کی صفت بتائی ہے، ٹھیک ہے. جی تو جنت میں جانے کے لیے آپ کو ایک فرقے میں تو آنا پڑے گا نا؟ بھائی اس کے آگے صحیح ہے. حدیث میں یہ بھی لکھا ہے، جو سنت صحیح ہاں حدیث وہ اور قرآن صفت ہے، صحابہ کے راستے پہ ہوگا وہ تو وہی جنت میں جائے وہ گا. تو تو ہاں سر یہ اس فرقے کی آپ سنو راشد ٹروتھ صاحب ہیز سے کم، بات کریے اس کے ٹروتھ بارے ہیز میں. کم، ٹروتھ ہیز کم. سنو جی جی میں بول رہا ہوں، دیکھو میں سمجھا یہ رہا ہوں آپ کو. سر میرے کو تقیہ بولنے کر دو، آپ کے بولنے نہیں دیتے، آپ میرے کو بولنے نہیں دیتے. میرا سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو نا یہ آپ. مسئلہ. اچھا ساحل ہاں بھائی، میں دے ساحل رہا بھائی ہوں ایک سیکنڈ. سر، میں دے ساحل رہا بھائی، ہوں. ایک منٹ. آپ بولنے نہیں ایک دیتے منٹ سر بھائی، میرے کو. ایک اچھا صاحب جواب بولے، دو. ٹروتھ بھائی آپ سوال سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو وہی سوال سمجھ ہیلو لیجیے، اس ساجد کے بعد سر، اس کا جواب سنو دیجیے. تو بولو ساحل بھائی بولو نے ٹروتھ ہیز کم بولو. ساحل بھائی نے ایک بات کہی تھی، ساحل بھائی کو یاد ہوگا، انہوں نے کمنٹ کرا تھا کہ یہ پہلے جب. یہ جواب پہلے یہ جی جواب. ہاں سر سن تو لو، یہی تو مسئلہ ہے بھائی آپ لوگوں کا، آپ لوگ بات نہیں کرنے دیتے لوگوں کو، یہی مسئلہ ہے. یہ آپ سوال نے دم پرابلم یہ ہے کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے آپ آپ نے اس کا جواب نہیں دیتے ہو، تو میں ہاں کیسے آپ جواب کو ہر موقع چیز دوں؟ دیں گے میرے بھائی، اس کے ایک اصول ہے، سن تو لو. ہر چیز کا ایک اس اصول حدیث ہوتا ہے. کے بارے میں سن تو لو. اس حدیث ہیلو. کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں سر سن تو لو میری جان، سن تو لو یار، سنتے ہی نہیں، باہر نکال دیتے ہو، بس بات کرنی ہے نہیں، بس باہر نکال دوں گے، چلو جی بھائی مومن بھاگ چکا اس ہے. اس کا ہاں جواب تو دے سر، دو. ہاں میں آؤں گا میرے بھائی، سن تو لو، میں آؤں گا، گھبرا کیوں رہے ہو؟ نہیں، اس میں پہلے جواب دو گے، اس کے بعد ہمارا جو ہاں ایکچوئل ٹاپک ہے اس پہ بات ہوگی، اس کے بعد آپ دوسری بات کرو گے. پلیز جی 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 اس کا پہلے جواب دے دو. آپ لوگوں کو شرمندگی کیوں ہوتی ہے رسول اللہ کی حدیثوں پہ؟ آپ جی. لوگوں کو شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ میرے کو کیوں ہوگی بھائی زندگی؟ آپ کو اگر آپ تو ڈیبیٹر جواب دے اپنے دو. آپ تو کو اگر تو ڈیبیٹر مانتے ڈیبیٹ کرو گے تو میرے سے؟ جواب دے تو جواب دو ڈیبیٹ نا پھر کرو اس گے؟ کا.
एक तो टॉपिक जवाब तय दो करें, इसका। डिसाइड करें। हाँ हाँ बिल्कुल, ओ भाई, इसका जवाब आपकी दे दो जो पहले। आपकी जो मुराद है वो पूरी कर देंगे हम। एक बार हाँ तो बोल दो आप। तो करो, जवाब दे दो इसका। तो हाँ हाँ मैं 73 माइनस 72 इक्वल टू 1, राइट? देखो सर, आप सुनते ही नहीं। आप, यही तो आपका मसला है, आप सुनते नहीं। आप लोग बाहर नहीं निकालते हो, सुनते गाली ना देते भाई, हो ना। आप भाई, नहीं गाली आप नहीं बने देते हुए हम। कि भाई हम तो सुनो सुनो, आपके हम एडम गाली सीकर नहीं गाली देते देते हैं। भाई। नहीं भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं तो भाई वो आपसे आपके इज्जत से चैनल बात पे तो कर रहा आते हूँ हैं, ना। आपके ही चैनल पे आने आते हैं दो वो। ना, आने दो। जो गाली खानी तो आप जैसी मना भी हरकत नहीं करते। करेगा उसको। भाई मैं नहीं कह देखो, रहा हूँ, अगर अगर आप डिबेटर है तो डिबेटर से डिबेट क्यों नहीं करते भाई मेरी यहाँ पे। बात सुन लो, मेरी बात सुन लो पहले, इस बात का हाँ मैं जवाब सुन दो। तो रहा हूँ अगर आप मेरे टाइम भाई। पास करने के लिए आओ। मैं कहता हूँ, अगर आप डिबेटर है तो डिबेटर से डिबेट क्यों नहीं करते। इस आप यहाँ पे हदीस के मच्छी बाजार बारे में बना आपको रखी है। शर्म आ रही है? आपको इस हदीस पे शर्म आ रही है? आपने भाई चाहे कमेंट में कहा था कि इस भाई मेरे को हदीस पे शर्म आ रही जब है? मेरे को इस आपने हदीस कमेंट पे में, शर्म आ रही है? मैं जवाब दे रहा हूँ, इस सुनो। हदीस पे आपने आपको शर्म आ रही है? आपने पहले इस कमेंट में हदीस का कहा था जवाब। कि जब मेरे को, इस हदीस पे भाई, साजिद भाई ये देखिए कि ये लोग शर्मिंदा है रसूलुल्लाह की बातों पे, जो रसूलुल्लाह के लिए मरने मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, आइडेंटिटी लीक करते हैं किसी की। आज उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि रसूलुल्लाह की बात का दिफा कर सके। उनको शर्मिंदा पता होते है हैं। कि मैं ये बोल दूंगा, हाँ तो एक फिरके में आना पड़ेगा। यार कितनी सिंपल सी बात है साजिद भाई, कि ये जो मुस्लिम वाले आते हैं, रसूलुल्लाह को चाहिए था, रसूलुल्लाह को ना ना अल्लाह को अपनी बात रखने आता, ना रसूलुल्लाह को अपनी बात रखने आता है। अगर फिरकों में नहीं पढ़ना चाहिए मुसलमान, तो रसूलुल्लाह को ये कहना चाहिए था कि कोई भी मुसलमान फिरकों में नहीं पढ़ेगा, जो फिरकों में जाएगा वो जहन्नम में जाएगा, ऐसे कहना चाहिए था ना फिर। जहन्नम में जाएगा। लेकिन उन्होंने हाँ कहा एक फिरका जन्नत में जाएगा, तो वो खुद तालीम दे रहे हैं फिरका बनाने की। और हाँ, ये उसकी लोग कह रहे सिफत हैं हम किसी बताइए। फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, किसी फिरकों को नहीं मानते। तो ये खुद सरासर उसकी नाइंसाफी कर रहे हैं, नबी के खिलाफ हद है जा रहे हैं। यार। चलो, फिरके पे बहुत डिस्कशन हो गया है, अभी हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। राशिद साहब, आपको तो जरा कितने पढ़े लिखे हो ना राशिद साहब आप? जी मैं सीएस कर रहा हूँ। ओए होए होए होए, चलो सीएस कर रहे हो, मतलब जी कम से कम थोड़ा जहन तो आपका काम करता ही होगा। ये देखिए मेरे सामने सूरह फुस्सिलत, सूरह नंबर 41 और उसकी आयत नंबर 11 है। अल्लाह कहता है, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं था, तो जी इसने इससे यानी आसमान से और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, ख्वाह खुशी से ख्वाह नाखुशी से। इन्होंने कहा जी कि हम खुशी से आते हैं। और एक जी नीचे जो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का जो ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है, उसमें लिखा है, चले आओ चाहे खुशी से या जबरदस्ती। दोनों ने कहा हम खुशी खुशी आते हैं। जी भाई, आप सीए कर रहे हैं, जी कम से कम लॉजिक तो लगाते ही होंगे। जी अच्छा, ये जी क्या सर, है बताइए जरा, आपको पता है हमारा अर्थ बना कैसे? कैसे ये बना है? ये आप ये जानते हो सर, स्टार बनता कैसे? नहीं, उससे इस चीज नहीं का नहीं क्या सर, रिलेशन सुनिए है? सुनिए नहीं सुनिए। नहीं, सुनो मेरी बात हाँ सुनो, मैं देखो रिलेशन नहीं प्रॉब्लम। बोला तो आप राशिद बोलिएगा। राशिद जी जी राशिद जी। राशिद मेरी बात सुनो। आपको ये बताना है कि जमीन और हम्म, आसमान बातें करते हैं, और जमीन और आसमान के अंदर फीलिंग होती है कि वो ये फैसला लेते हैं हम खुशी खुशी आएंगे या दुख से आएंगे। ये बताना है आपको। आप जमीन कैसे बनी, क्या बनी, ये सवाल नहीं है। भाई देखिए, स्टार कभी भी जब बनता है ना तो वो धुआं से बनता है, ये साइंस बोलता है। ठीक है, मेरा सवाल ये वो है ही पहले नहीं धुआं भाई, मैंने होता उस है, पे अब सवाल बात किया। घुमा रहे हो मैंने जी। मैंने आपसे धुएं पे सवाल किया। इसमें आयत में तो धुआं लिखा हुआ है ना। मेरा सवाल धुएं पे है। भैया मेरा सवाल सवाल किस पे धुएं है? पे नहीं ना है, सवाल तो समझिए आप, सवाल बात करने की हो रही है। और धुआं था जी कि पहाड़ था कि आयरन था, क्या था, उससे मुराद नहीं है। आगे का सवाल तो आप सुने। हाँ जी साहिल भाई। देखिए, ये जी। ऐसी बात है, ये गैप का इल्म है जिसका इल्म हमें ओए नहीं होए है। होए होए। और इस बातों को नहीं ना नहीं, साइंस प्रूफ कर सकता है कि ये गलत है। गलत है। साइंस नॉन प्रूफ लिविंग कर थिंग सकता है बात तो नहीं आप प्रूफ करते। कर दीजिए। अच्छा, अच्छा, एक मिनट बताओ, पहाड़ वो बात क्या करते बात हैं? करते क्या नहीं करते हैं? देखिए, पहाड़ में पहाड़ फीलिंग्स बात नहीं है ना करते हैं। आसमान में फीलिंग्स है। सुनिए, पहाड़ में फीलिंग्स नहीं हाँ ना तो फिर आसमान में, उसकी मैं दलील कितना दे मानते सकता हो? हूँ।
सुनो सुनो इसको सुनो मैं सुनो, इसकी रुको रुको इसकी रुको मैं दलील दे रुको, सकता हूँ राशिद आपको। राशिद रुको, जी, राशिद रुको रुको रुको। आपने अभी जी, जी। कहा ना पहाड़ में फीलिंग है ना आसमान में हाँ, फीलिंग है, मानते हो जी, ना? जी, मानते हो ना? सीएस किए जी हो, हाँ, मैं इतना तो इसको पढ़ाई मानता हूँ। किए होगे। भाई ये अच्छा, ना हदीस से भी मैं पहाड़, बोल सकता सुनो, हूँ। अरे जी, रुको मेरे भाई, ना पहाड़ बात कर सकता, ना आसमान बात कर सकता, ना जमीन बात कर सकती, इतना भी मानते हो ना? जी। अच्छा, आपका अल्लाह कह रहा है बात करते हैं और आप कह रहे हो कि ये नहीं बात उसमें करते, आप फीलिंग्स सही नहीं है। अल्लाह सही। सुनिए, तो उसमें यहाँ तो फीलिंग्स फीलिंग की नहीं बात है। कर रहा है अल्लाह। यहाँ फीलिंग्स लिखा हुआ है कि उसमें फीलिंग्स है। हाँ, ये देखो ना, ये ये क्या है, अल्लाह का खुशी हुक्म खुशी है। अल्लाह ने जबरदस्ती? कहा हो जा, वो हो जाता है। नहीं हुआ ना इधर, समझ ये रहे देखो, अल्लाह क्या, सुनो मेरी कैसे बात, नहीं या हुआ? अल्लाह क्या कह रहा है, जी। या देखो ना क्या लिखा हुआ, अल्लाह ने क्या कहा, हम्म, देखो। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जबकि वो इस वक्त धुआं की शक्ल में था, और इससे और जमीन से कहा, किससे कहा? वो धुएं से प्रत्येक और आकाश जमीन और से कहा। संबंधित आकाश आदेश हाँ जी, हाँ, जब पढ़े मैं सुन धुएं देख और जमीन से कहा, ठीक है, अल्लाह उनसे कह रहा है, चले आओ, चाहे खुशी से या जबरदस्ती। जी, ठीक है, क्या कह रहा है अल्लाह? जी, जमीन और आसमान से, चले आओ जी, खुशी से या जबरदस्ती। दोनों ने जी, कहा, किस किस ने कहा? दोनों ने। हाँ, यानी धुएं ने हम्म, और जमीन ने कहा, हम्म, हम खुशी खुशी आते हैं। हम्म, हाँ, ये खुशी जी, खुशी, ये फीलिंग नहीं है, ये इमोशन नहीं है। देखिए भाई, हाँ बताइए। ये जो बातें है ना, सुनिए, कुरान जो किताब है, ये साइंस की किताब नहीं है। पहली बात तो कि आपको हाइड्रोजन, हीलियम या बिग बैंग ये अच्छा, सब मतलब फिर बताया जाएगा कि कुछ भी बकलोली कर देने का, साइंस की किताब नहीं है तो कुछ भी बकलोली कर देने का मतलब, मैं अभी मेरे सामने पत्थर है, उसको बोलूंगा पत्थर, पत्थर जी, आप खुशी खुशी मेरे हाथ में उड़ के आइए, मुझे इस्तिंजा के लिए जाना है। तीन तीन ईंट रहेगी उधर, ईंट साहब, आप खुशी खुशी आओगे मेरे हाथ में, या फिर जबरदस्ती आपको उठाऊं, मुझे इस्तिंजा के लिए जाना है, पानी नहीं है, ईंट घसना है नीचे। तो ये बकलोली नहीं है तो क्या है मेरी, बताओ आप ही। भाई देखो राशिद, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो यार, हमारा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं है, आपकी आंखें खोलना है कि आप खुद एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको खुद को पता है कि ये नॉन लिविंग थिंग ये बातें नहीं करती, इनके अंदर फीलिंग नहीं होता, लेकिन आपके अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां मारी है, इलॉजिकल इर्रेशनल बातें की है कि एक इंसान अगर सुने तो उसको हंसी आए। सच्ची बताना, अगर मैं जो अभी कहा ईंट से कहूं, ईंट साहब आप खुशी खुशी मेरे हाथ में आते हो, आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी अगर मैं आपके सामने ये कहूंगा तो? सच्ची बोलना राशिद। राशिद, अरे यार, ये मेरे नाम राशिद, से एक से मुस्लिम और कौन आ गया? ये आप नहीं है, ब्लॉक मार दो। नहीं, राशिद, अब लगता है राशिद के समझ में आ गया है, राशिद की आवाज बंद हो चुकी है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ राशिद, आई, आवाज आई। हाँ, राशिद, अगर मैं आवाज ईंट आ रही से है? कहूं, आ रही, जी, मैंने एक मिसाल दी आपको, मेरे सामने जी, ईंट है, मैं ईंट जी, से कहूं कि ईंट जी, साहब आप खुशी खुशी मेरे हाथ में आओगे, या मैं आपको जी, जो है जबरदस्ती अपने हाथ में लूं, मुझे इस्तिंजा करना है, पानी नहीं है, और मुझे जो है वो पेशाब के कतरे जो है वो आपके अंदर अब्जॉर्ब करवाना है। अगर आपके सामने ये कहूं, आप मेरे ऊपर हंसोगे या नहीं हंसोगे? मुझे पागल मैं कहोगे कि नहीं हंसूंगा। कहोगे? आप पे तो पागल कहूंगा। कहोगे ना? फिर अल्लाह भी हंसूंगा ऐसी, भी और पागल भी कहूंगा। सुनिए, अल्लाह और सुनिए, मेरी, अल्लाह 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 में और इंसान मेरी को बात में जिंदा क्या करता है फर्क और है? अल्लाह इंसान को मारता है। क्या आप इंसान को जिंदा कर सकते हैं? किसी क्रिएचर को बना सकते हैं, मार सकते अच्छा हैं? मैं, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप अल्लाह से मैं कंपेयर एक कर रहे इंसान, खुद को सुनो कि सुनो आपके सुनो, आपके अरे बोलने पे मोबाइल भी अरे आपके हाथ में सुनो नहीं ना, आएगा भाई। जी। मेरे भाई सुनो, मेरी बात सुनो। हम्म, पहली बात हम्म, तो आप ये मानते हो कि जमीन और आसमान जो है वो बात नहीं करता, उसके अंदर फीलिंग नहीं है, इतना तो मानते हो? हाँ, जी, अच्छा, मैं एक इंसान जो पटरी पे जाकर अपना सर रख दे ट्रेन के जी, नीचे,
और ट्रेन चढ़ जी जाए उसके ऊपर, जी उसकी गर्दन कट जाए, क्या अल्लाह जी उसको बचा सकता? नहीं, वो मर जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने, देखिए अल्लाह ने जहर अरे खाने से भी पावर मना नहीं है, किया है। क्यों मना किया है? यानी पावर पावर नहीं अरे है। वाली बात भाई नहीं है मेरे नहीं भाई। नहीं नहीं, सुनो सुनो जंग सुनो, मेरी होता बात था, सुन इस्लामी राशि, जंग होता राशि था। सुनो, जी राशि जी सुनो सुनो, अब देखो, हम्म, अब मसला ये है कि आप जो अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हो वो जी चीजें हैं जो लॉ ऑफ नेचर है, यानी वो जी हमारे सामने है। अगर जी वाकई में अल्लाह को अपने आप को खालिक साबित करना पड़ेगा, करना है, तो उसको हम्म, एक कटी हुई गर्दन वाले इंसान को जिंदा करना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि हाँ इसने कुछ अलग किया है। तुम वो बात बता रहे हो जो तो नॉर्मली सबके साथ होता है। अच्छा जी। समझ मेरे इसका भाई, अल्लाह मैं ने जवाब मैं आपको दिया था, समझाना चाह सुनिए। रहा हूँ। हाँ, जी मेरे भाई, मैं एक बात बोलूंगा। एक एक ऐसे इंसान आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हड्डी उठाता है और उसको चूर करता है, बोलता है क्या आपने तुम्हारा अल्लाह देखा, इसे जिंदा करेगा? सुनिए, ये आपने हदीस है, देखा, तो क्या तुम्हारा अल्लाह इसको जिंदा अरे करेगा? भाई तो हदीस है, तो आपने कुरान देखा की क्या? आयत हमने तो, आए। मेरे भाई सुनो, हाँ सुनिए। मेरी माँ जो है, सुनो मेरी बात, हम्म मेरी हम्म माँ और जो है मेरी नानी जो है हमको ऐसी बहुत सारी कहानी सुनाती थी। हम्म एक इंसान था, वो ऐसा था, हम्म वो हवा में हम्म उड़ता था, ये सब कहानियां हम्म हैं। आपने देखा है क्या? हम्म आपने देखा आपके सामने कटी हुई गर्दन वाला इंसान कभी उसकी गर्दन जुड़ गई और वो चलने लगा, ऐसा देखा आपने? यार सीए कर रहे हो यार, राशिद, कुछ तो दिमाग लगाओ। हम्म। आप बेवकूफ बताओ ना कि बनो। आज की तारीख में कोई अगर किसी की गर्दन कट जाए, क्या आपका अल्लाह इस बात पे कादिर है कि उसकी गर्दन अपने आप जुड़ जाए आपके सामने और वो चलने लगे? क्या अल्लाह कादिर है इस बात का? अल्लाह इस चीज पे कादिर है। अल्लाह नहीं ने नहीं, मुझे यहाँ अरे सुने। नहीं नहीं, सुनो सुनो, है मतलब जी, कर सकता है अल्लाह आपके सामने? बेशक कर सकता है, कर सकता है, अगर अल्लाह आप चाहे तो। करके दिखाएगा? नहीं, हाँ देखो ये प्रॉब्लम है, ये अल्लाह प्रॉब्लम है। चाहे सुनो, तो, देखिए भाई। अल्लाह चाहे तो भाई, मैं चाहने से मैं भी उड़ सकता हूँ, हम्म जी हम्म बिल्कुल। मैं भी उड़ सकता हूँ, मैं हवा में उड़ता हूँ। मेरे को जब हम्म चाहत होती है मैं आसमान में उड़ता हूँ। हम्म हम्म मानोगे मेरी बात? उड़ के दिखाइए। जी, उड़ के दिखाइए आप। एग्जैक्टली अब जब आपने हम्म कहा एग्जैक्टली हम्म ये है आपका, देखो ये सीएस, ये जी जो सीए या सीएस जो आप कर रहे हो ना, ये लॉजिक आपने हम्म लगाया है और सही क्वेश्चन किया कि उड़ के हम्म दिखाओ। उसी तरीके जी से आप कह रहे हो कि अल्लाह कर सकता है। मैं आपके अल्लाह को और आपको चैलेंज देता हूं कि आप एक मेरे सामने अभी मच्छर आएगा, मैं मार के दिखाता हूं, आपके अल्लाह को चैलेंज करो कि उसको करके दिखाओ, तो मैं मानूंगा। दिखा सकता है अल्लाह? देखिए, अ, मैं फिर से बोलूंगा कि ये किताब जो है ना, निशानियों की है। तो अल्लाह ने देखिए निशानी दी थी, जैसे मैं उसको अरे कंप्लीट करता निशानी हूँ। में बोंगिया, बोंगिया क्यों मारा अल्लाह ने? बोंगिया निशानियों मारी वाली जाती है ना किताब में बोंगिया भाईजान। क्यों मारी है? ये क्या जब बोंगे मूसा हमारी? अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए थे, तो फिरौन के हम्म दरबार में यही कहा कि अल्लाह इस तरफ से सूरज निकालता है, आप उस तरफ से निकाल के दिखाओ। हाँ, अरे यार, तो रूटीन अगर रूटीन उसी को वर्क को ये फिरौन अपने ऊपर मूसा बोल डाल दे, दिया। अलैहिस्सलाम ने, ये तो इब्राहिम फिरौन बोल अलैहिस्सलाम दे का कि ठीक वाकया है, है। अपने खुदा से कहिए उल्टी तरफ से सूरज वो नहीं नहीं, निकाल ये के दिखा दे, इब्राहिम क्या हाँ करता फिर? एग्जैक्टली सूरज को हेलो। देखो निकाला क्या जी उल्टी तरफ से कभी खुदा ने? तुम तुम्हारे अल्लाह ने इस बात का सहारा लिया है, जो नॉर्मली चीजें होती है उसको अपने ऊपर मंसूब कर लिया है। अल्लाह को अगर अच्छा। दिखाना था अपनी कुदरत, तो वो उसके हम्म उलट करके दिखाता। बिल्कुल। अच्छा, तो समझ अब रहे? क्या चाहते आपने हैं? भी, मैं ये जी चाहता हूं कि भाई जो आपके माँ बाप ने आपके ऊपर पैसे लगाए, जो सीए या जी सीएस आप कर रहे हो, उसको जी। बर्बाद नहीं करो ये सब भोंगिया मान के। कम से कम थोड़ा अच्छा लॉजिक लगाओ। और भाई, ये जो इलॉजिकल बातें हैं, सुनो मेरी बात, ये जो ठीक है। इलॉजिकल बातें हैं कि आसमान में फीलिंग है, जमीन में फीलिंग है, ये इलॉजिकल बातों को कम से कम यार डिफेंड करो मत। जो गलत है उसको अच्छा गलत मानो कि अल्लाह ने ये सब अच्छा, बोंगिया मारी है। देखिए भाई, अल्लाह ने कुरान में जो कहा है उसमें कोई शक नहीं है। और एक बात मतलब बताए भाई, सिर्फ चलिए हम अल्लाह लोग ने कहा रिलीजन इसके छोड़ते लिए, हैं मेरे भाई। एक आप मिनट, नहीं रिलीजन नहीं 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 नहीं, मानते? सुनो सुनो, जी सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपने जी। कहा कि अल्लाह ने कहा है तो वो सच ही होगा, हम्म है ना? जी। हम्म है ना? हम्म मतलब है उल्टी चीज,
मतलब है मजाक वाली चीज, लेकिन अल्लाह ने कहा तो सच ही होगा, यानी अल्लाह जो कह दे वो सही है ना। बेशक। अच्छा, अल्लाह अगर आपको टट्टी खाने कहे तो खाओगे ना? बेशक, अगर अल्लाह ने कहा तो लिख के दिखा ओए दीजिए आप मुझे। होए 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 होए, अल्लाह ने जो कहा। एक बार एक बार रिपीट, एक बार रिपीट, भाई नहीं मेरे, एक अल्लाह बार ने ऐसा रिपीट, भाई बिल्कुल अलग नहीं करो। कहा, ये एक भी तो मिनट देखिए। एक मिनट एक मिनट जी, एक जी। नहीं 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 नहीं, सुनो नहीं, सुनो, नहीं, सुनिए मैं भाई, फिर एक मिनट अल्लाह ने रुको, ऐसा नहीं मेरी कहा। मेरी बात मेरा सवाल वो नहीं, अल्लाह ने ऐसा कहा या नहीं कहा। हाँ, अगर अल्लाह आपको टट्टी खाने कहता तो आप खाते या नहीं खाते? भाई अल्लाह का जो हुक्म देखिए, हम लोग अल्लाह को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें कुछ लॉजिक दिख रहा है उसमें, तब मान रहे हैं, हाँ वही तो, टट्टी वरना नहीं खाने में भी मानते। आपको लॉजिक दिख, टट्टी खाने में भी आपको देखिए लॉजिक दिख भाई, जाता ना। सुनिए भाई, ये आपका जो सवाल है ना भाई, ये कैसा है? भाई आप क्योंकि जो है ना आपके बात। अल्लाह ने, सुनो मेरी बात, आपके अल्लाह ने क्या जी। किया, हजरत आदम और हजरत हव्वा हव्वा जो है, अच्छा एक बात बताओ, अगर अल्लाह हम्म, आपको अपनी बहन के साथ सेक्स करने के लिए कहता, शादी करने के लिए, आप करते? अपनी बहन के साथ। हाँ। भाई क्या? नहीं आप ये समझ लीजिएगा, अल्लाह ने कहा नहीं है, अगर कहता, हाँ अगर कहता तो आप करते कि नहीं, अल्लाह की बात मानते या आप अगर ये कहते कि अल्लाह नहीं यार ऐसा कहता ऐसा तो ये खुदा नहीं। पूरे दुनिया में हाँ होता। सुनिए, जैसे कि पहले जो है हाँ ना हाँ, कजन मैरिज नहीं नहीं नहीं, होता दुनिया था, को छोड़ दो। अरे वो भाई सब दुनिया, छोड़ ये दीजिए सुनो होता मेरी भाई। बात और ये सुनो। कॉमन होता और नहीं हर नहीं कोई नहीं, करता, अरे और नहीं, मैं भी नहीं करता कॉमन अगर नहीं है, अल्लाह ने कहा जैसे, होता। अरे भाई नहीं, सुनो मेरी अगर बात, सिर्फ जैसे स्पेशली कि, मेरे लिए क्यों अरे बोलेगा अल्लाह? रुको हम्म, राशिद, रुको, नहीं मुसलमानों के लिए सुनो, जैसे कि मिसाल हम्म, के तौर पे बच्चों का एडॉप्शन जो है वो कॉमन था, हम्म, ठीक है, हम्म, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया, तो वो कॉमन वाली कहाँ बात यहाँ मना बीच में किया? मत लेके आओ जी। यार। आपको ये पता नहीं है एडॉप्शन मना है इस्लाम में? कहाँ लिखा है भाई? देखिए, अभी एडॉप्टेड चाइल्ड अभी का अभी बता दूं, प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं होता। अभी अगर एडॉप्टेड बता चाइल्ड का, दूं कि आपका सुनिए, मुंह बोला बेटा, जैद सुनो मेरी जैद बात, बिन हारसा, अरे मेरी जैद बिन बात सुनो हारसा। यार। हाँ, वो क्या एडॉप्टेड सन था आपका कि मुंह, नहीं प्रॉफिट मोहम्मद का? नहीं ना, मना कर दिया ना रसूलुल्लाह ने, बोले मेरा कहाँ बेटा ही मना नहीं है, किया? कुरान की आयत बेटा उतर नहीं गई। है, उसका प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं होगा, ये लिखा हुआ अरे है। तो बेटा ये नहीं, नहीं लिखा कि तुम बेटा नहीं अडॉप्ट है। नहीं कर अच्छा सकते। बेटे का, एक मिनट, बेटे का प्रॉपर्टी में राइट हम्म, होता है क्या नहीं होता है? बेटे का होता है लेकिन अडॉप्टेड सन का नहीं होता। नहीं नहीं, बेटे का होता है क्या नहीं होता है? बेटे का होता है। होता है, मतलब प्रॉपर्टी से जी राइट छीन लिया, मतलब अब वो बेटा नहीं है आपका। भाई, अडॉप्टेड सन और बच्चे अपने बेटे का अच्छा, प्रॉपर्टी से एडॉप्टेड राइट बच्चे छीनना। से, एडॉप्टेड बच्ची से शादी कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? देखिए, अडॉप्टेड सन आपका जो है ना कुछ नहीं लगता असल में, ना आपका एडॉप्ट बेटा लगता है ना बेटी। देखिए, एग्जैक्टली। आ गया। इस्लाम जैसे एक मिनट एक मिनट आप एक मिनट एक फ्री मिनट विल एक पे मिनट एक बात मिनट एक करते हैं मिनट, जैसे राशिद, एग्नोस्टिक लोग। राशिद जी, राशिद रुक जाओ, राशिद रुक जाओ, राशिद राशिद भाई रुक जी, जाओ, सुनिए। रुक जाओ। जी, एडॉप्टेड बेटी एक्चुअली आपकी बेटी नहीं होती है, आप उससे नहीं शादी होती। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? जी, कर सकते हैं। ओए होए होए, मतलब हाय अगर हाय हाय। आप एक बच्ची को अडॉप्ट करते हो 5-6 साल की, जी, और वो जी, बड़ी हो जाती है 18 साल की, हम्म, तो जी, आप उससे शादी कर सकते हो? जी, कर सकते हो ना, आप भी करोगे ना, क्या मतलब बात है। यही कह रहा हूं ना। इसी देखिए, तरीके से एथिक्स अगर आप, आपके, सुनो ये सुनो फ्री विल है सुनो यहाँ सुनो पे, कुछ राशिद, जगह इस्लाम राशिद साइलेंट है सुनो, भाई, जरूरी नहीं है आपको सुनो करना ही राशिद, है। जी, राशिद सुनो, राशिद सुनो, जी। करना ही, देखो यही प्रॉब्लम है, फिर से वंस अगेन मैं अगर कह दूं नहीं, इस्लाम कि बहुत जगह आप, साइलेंट है भाई, वहां पे अरे मैं आपकी कह विल, रहा हूं फ्री विल। रुको, जी, राशिद रुक जाओ, मैं जी, अगर ये अगर एज एन अथॉरिटी अथॉरिटी जी, मैं अगर ये जी, एक स्टेटमेंट पास कर दूं, कानून पास कर दूं कि आप रेप कर सकते हो, हम्म, ठीक है, आप जी, रेप कर सकते हो, आप बलात्कार कर सकते हो, ठीक है, हम्म, अभी आपको किसी ने कहा यार ये बंदे ने, साहिल ने तो बलात्कार करने की इजाजत दी है, तो आप मेरा हम्म, इस तरीके से दिफा कर रहे हैं कि भाई उसने इजाजत दी है, जरूरी थोड़ी ना हम लोग करें। हम्म। हम्म। देखिए, मैं लॉ का नहीं स्टूडेंट हूँ, समझे मैं अभी इस भी? चीज को समझता हूँ, मैं आपकी बात नहीं समझ समझे गया, मेरी बात? लेकिन मैं कंडेम क्या करूंगा समझे? इस चीज को कि मैं इस चीज को कंडेम करूंगा एग्जैक्टली कि आप ऐसा लॉ आपको, क्यों बनाए जिससे सोसाइटी को नुकसान हो सकता है।
एग्जैक्टली तो रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने ये घटिया कानून कि आप घटिया जिसको कैसे? अब अपने घटिया कैसे? बता रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं जी बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना जी, मैं भी कि आपसे क्वेश्चन आप कर रहा हूँ एक, भाई। अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, सुनो। जी। एक आप जो है एक बच्ची को गोद लेते हो 5-6 साल की, आपकी और आपकी आपको और आपकी वाइफ को जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपने एक बच्ची को गोद लिया, ठीक है, 4-5 साल की लड़की है, उसको आपकी वाइफ दूध भी नहीं पिला सकती। अब वो बच्ची जो है वो बड़ी हो गई, आपने उसको प्यार किया, पाला पोसा सब किया, अब वो बड़ी हो गई 17-18 साल की। अब आपका अल्लाह, आपका दीन, आपके रसूलुल्लाह इस बात की इजाजत देते हैं कि वो बच्ची आपकी बेटी नहीं लगती, आप उससे शादी भी कर सकते हो। जी, और इसका कंडीशंस भी ये भी बता दीजिए आप। क्या इसका कंडीशन? कंडीशंस बताइए क्या कि अगर आप कंडीशन? किसी लड़की को रखते, जैसे कि आपकी सगी बेटी भी है, अगर आपको लगता है कि आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप उसके पास नहीं जा सकते, उसे गले नहीं मिल सकते, उसको टच नहीं कर सकते, ये भी बताइए आप। भाई एक बेगैरत इंसान होगा जो सगी बेटी से उसका अट्रैक्शन हो, बिल्कुल। ऐसे आज जो और है ना फ्री दूसरा विल सिर्फ वाले सगी बेटी एग्नोस्टिक ने, लोग अरे मेरी, अमेरिका में ये सब अरे मेरी कॉमन है मेरे मेरे भाई। भाई प्रैक्टिकल वो लाइफ से बात उनको, करें ना भाई। सुनो सुनो, उनको करने दो। जी मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ जी बेगैरती ये नहीं है कि एक इंसान जी अपनी सगी बेटी से अट्रैक्ट हो, बेगैरती ये भी है जो आपके मजहब में है कि एक इंसान अपनी मुंह बोली बेटी से अट्रैक्ट हो, ये भी वो बेगैरत बोली इंसान बेटी है, से। और आपका पूरा दीन अच्छा बेगैरत है अगर वो इस अच्छा, बात की इजाजत साबित देता है। कर दीजिए। मेरे अच्छा भाई नहीं है इसका ना बेगैरती, कंडीशन है, आप आपके लिए कंडीशंस बेगैरती बता नहीं है ना? दीजिए। नहीं, देखिए आपके लिए हर चीज के बेगैरती नहीं है पीछे ना का एक ये? रीजन है। नहीं नहीं मेरे भाई, हर चीज के पीछे एक रीजन आपके लिए है। बेगैरती नहीं है ना? नहीं, मेरे लिए मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने एक बच्ची को जी लेके पाला, 18 साल की हो गई, आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको आपका इस्लाम जो है इजाजत देता है, आपके लिए बेगैरती नहीं है ना? अगर आप उसको पाल रहे हो, आपको लगता है आप उससे अट्रैक्ट होता, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उससे दूर हो मैं जाएंगे। क्या कह और रहा फिर आप हूँ शादी करना चाहे तो कर सकते हैं। इस्लाम हम हाय लोग एक हाय हाय हाय, हाय हाय कम मतलब सोच शादी हाय। पा रहे करके भाई। क्या करोगे? शादी करके क्या भाई अब करोगे? शादी करके कुछ भी करो ना, शादी उसका करके आपकी क्या दीदार वाइफ करोगे? होगी वो। करेंगे, मतलब दीदार भाई क्या करेंगे आप या कुछ करोगे? सब भी कुछ कर करो सकते हैं। भाई, वाइफ का जो राइट्स होता है, जो वाइफ के साथ करते हो वो कर वही सकते हैं बेटी आप। अभी आपकी वाइफ बन गई। कहाँ वाइफ बेटी बेटी है, और देखिए जितने एडॉप्टेड व्यूवर्स देख चाइल्ड का रहे कोई हैं ये इनके कॉन्सेप्ट लिए नहीं है आप लोग फूल फेंकना पसंद करेंगे या टट्टी शरीफ? ओ भाई, टट्टी फेंकिए भाई। भाई आप कुछ। एक बात एक मिनट रुको, बताओ, अभी आप जैसे कि जैद थोड़ा बिन रुक हारसा जाओ, का ये लेते। रुको यार अभी थोड़ा। बेगैरती, गाइस, 3,200 लोग देख रहे हैं, आप खुद सोचिए कि ये सीए स्टूडेंट है, ठीक है, इसने ये कहा पहले कि पहाड़ आसमान ये लोग बात नहीं कर सकते, ये फीलिंग इनमें फीलिंग नहीं होती है, लेकिन अल्लाह कह रहा है तो सही है, एक बात ये कहा उसने। उसके बाद इसने ये कहा, मैंने जब सवाल किया कि अगर अल्लाह टट्टी खाने के लिए कहे तो क्या खाओगे, तो इसने कहा हाँ खाऊंगा। तीसरी बात, और एक मैंने मिसाल दी, जो मुंह बोली बेटी है, इसने कहा कि हाँ हमारा मजहब इजाजत देता है कि आप एक बच्ची को जो पाल रहे हो उससे आप बड़ी होने के बाद 18 साल की या 17 साल की, बल्कि अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत फॉलो करे तो 9 साल में ही जो है वो लड़की बड़ी हो जाएगी और उसके साथ फिर वो हम बिस्तरी भी करेगा शादी करके। यार खास करके अगर मोमिना कोई सुन रही है, मुसलमान औरतें अगर सुन रही है, यार आप लोग सोचो कि ये एक बेगैरती, आप सोचो, आप किसी बच्ची को कभी जो है ना घर पे मत लेके आना, क्योंकि आपका शौहर का बिल्कुल। भी, आपके शौहर की सोच भी इस बंदे के जैसी हो सकती है, राशिद नाम के, वो उस बच्ची पे नजर डालेगा बड़ी होने के बाद, क्योंकि इस्लाम उसको इजाजत देता है। आप सोचो कि आप इस्लाम को फॉलो करके आप टट्टी खाने के लिए रेडी हो, आप इलॉजिकल इरैशनल चीजों को मानने के लिए रेडी हो। ये है इस्लाम, और ये हमारा एक्टिविज्म जो है वो आपको यही दिखाना चाह रहा है कि देखो क्या हो जाती है आपकी सोच। और साहिल भाई, ये यार हम लोग नॉन किसी जाहिल मोमिन से प्लीज ना गुफ्तगू जुड़े। नहीं कर रहे हैं, ये सीरियस कर रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं अच्छा, किसी कोई जाहिल बंदे जाहिल से हम लोग इंसान, पूछ रहे हैं। एक जाहिल से पूछते तो ये होता अगर यार जाहिल आ जाते हैं मुंह उठा करके, ये पढ़े लिखे बंदे ऐसा बोल रहे हैं। मतलब दिमाग बिल्कुल नहीं सोचो। लगा रहे हैं इनको। इस्लाम की बात आ जाएगी, कुरान की बात आ जाएगी, हदीस की और रसूल की बात आ, इनको दिमाग नहीं लगाना है।
इनको फौरन आंख बंद करके कहना हाँ ठीक, मन्ना सद्दकना। बाप रे बाप यार, मैं इतना मतलब मुझे एक अफसोस ये होता है कि मैंने मेरी जिंदगी के बचपना तो खैर इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन मेरी जिंदगी के तकरीबन मैंने 20 साल या समझ लो 18 साल मैंने ऐसे मजहब में लगाया जिसमें इतनी जहालत और वैशीपना और गंदगी है। अफसोस होता है साहिल भाई, कभी कभी हम भी सोचते हैं ना, बहुत अफसोस होता है कि वो जिंदगी ना बेकार चली गई, राइगा चली गई। कम से कम हम निकल तो गए भाई, हमारी तो समझो कि इसमें जवानी बर्बाद हो गई, लेकिन आप लोग जो जवान है, मुसलमान है, और जो खास करके जो महिला है, आप लोग गौर करिए यार, ये क्या सोच आप लोगों को देता है इस्लाम। जो ओह, मोमिन साहिल भाई आज भी सुधर जाएंगे तो उनकी आने वाली नस्लें तो कम से कम अच्छा भविष्य देख पाएंगी। कम से कम इन चीजों से, टट्टी शरीफ से तो दूर रहना पड़ेगा, अपनी बेटियों से निकाह करना तो इनसे तो दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल। राशिद साहब, आपका लास्ट कमेंट कुछ बोल दीजिए, फिर हम, आपकी बात आ गई, हम दूसरे को मौका दे देते हैं। जी, आपका ये कहना है ना कि ये जो है मिजाज के खिलाफ है इंसानियत के, तो मुझे ये साबित कर दीजिए कि इंसान के मिजाज के खिलाफ कैसे इंसानियत के, ये दिखाइए आप कैसे साबित करेंगे क्या 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 समझा कि नहीं, ये मेरे को जो आपका है, सवाल नहीं आपने समझ। बोला ना ये गैरत के खिलाफ बात है, अडॉप्टेड सन, हाँ अडॉप्टेड ई से, डॉटर हमारी से शादी गैरत, करना। हमारी, हाँ, क्योंकि तो हमारे साबित करिए अंदर, भाई आप। सुन मैं कह रहा हूं ना, मेरे अंदर इतनी समझ है, जिस तरीके से मैं जी टट्टी नहीं खाऊंगा उस तरीके से मैं अपनी जी मुंह बोली बच्ची अगर कोई होगी मेरी, तो मैं उसके जी साथ जो है, मेरे जहन में कभी ये ख्याल भी नहीं आएगा कि इसके साथ मुझे सेक्स जी करना है। जैसे टट्टी नहीं खाऊंगा वैसा ये भी नहीं आएगा। यही हमारी सोच है, यही हमारी अकल है। आप लोग जी चूंकि, सुनो मेरी बात, आप लोग चूंकि पाबंद हो उस अनदेखे और वो क्या कहते हैं जिसको साबित नहीं किया जा सकता, ऐसे खुदा के पाबंद है, इस वजह से आपको टट्टी खाना भी पसंद आएगा। आपको अपनी माँ बहन के साथ सेक्स करने में भी अगर कोई माँ प्रॉब्लम नहीं बहन होता, नहीं अगर भाई, आपके कहाँ माँ बहन क्यों, मेंशन है? अच्छा माँ बहन हजरत कहाँ आदम, मेंशन है? आप बात घुमा रहे हो। मैं बताता हूँ ना, जी हजरत आदम जो जी है, उनकी जो औलाद हम्म थी, हम्म ठीक है, हजरत आदम जी और हजरत हव्वा को अल्लाह ने दुनिया में भेजा था, ठीक जी है। उनकी जी औलादें जो बड़ी है, वो हम्म। कैसे बड़ी? क्या उन लोगों ने आपस आपस में शादी की थी? कैसे की थी, आप बताओ। देखिए, एक वक्त में दो हम्म, जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, और ये दो जुड़वा ओके। उस वक्त के लिए ये दोनों भाई बहन होते थे। दूसरे वक्त में दो हम्म जुड़वा होते थे, और ये अलग अलग हम्म टाइम वाले अलग अलग से शादी कर सकते थे, ना कि एक टाइम होने अच्छा, तो वाले एक भाई से बहन कर नहीं थे सकते हैं। वो भाई नहीं बहन थे नहीं ना थे। भाई, क्या उस टाइम कोई दूसरे लड़का लड़की आते क्या? एक हाँ, मिनट नहीं, रुको, आप मतलब लॉजिक दीजिए एक एक फिर। मिनट ही रुको। माँ से पैदा हो रहे हैं। जैसे भाई आप वक्त अगर के जुड़वा हिसाब पैदा, से लॉ चेंज समझ होता है लीजिए, मेरे भाई। समझ लीजिए, एक मिनट आपके क्या रुको। जुड़वा भाई एक बहन पैदा हुए, फिर दो और हो गए आपकी आपकी माँ से, आपके हम भाई लोग बहन और आदम पैदा हुए, अलैहिस्सलाम के तो जमाने में अगर जी आप रहे हैं। अपनी छोटी बहन से निकाह कर सकते हैं, माँ एक ही है। हम लोग आदम ओ अलैहिस्सलाम बाप, के जमाने में जी रहे हैं। एक मिनट राशिद, हम एक लोग मिनट कहाँ है रुक भाई? मेरे भाई। आज जी आज आज तूने इस्लाम को पूरा नंगा कर देना है गाइस। अब देखो ये भाई क्या कह रहे हैं कि हजरत आदम और हजरत हव्वा, नुतफा तो एक ही था, नुतफा तो एक ही था ना। अब 10 बच्चे पैदा करे या 20 बच्चे पैदा करे, नुतफा तो हजरत आदम का ही था और जा रहा था हजरत हव्वा के रहम में। अच्छा, इनका लॉजिक देखिए, मतलब फर्स्ट जुड़वा जो हुए और जो सेकंड जुड़वा हुए वो भाई बहन नहीं है, वो उनका डीएनए अलग अलग हो गया। वो- अरे अब राशि साहब, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप ये सीए कर रहे हो? भाई, सीए के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता, इसका एक ही इंस्टीट्यूट होता है पूरे इंडिया में। खैर, आप अच्छा, सीए अगर न इंस्टीट्यूट मानना ना, चाहे तो। इंस्टीट्यूट जी, ऑफ आप मानना चार्टर्ड चाहे तो। अकाउंटेंट वहां नहीं, मेरी जी बात सुनो ना, अ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से कर रहे हो ना आप सीए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड जी अकाउंटेंट वहां से जी कर रहे हो ना? भाई मेरे को लग रहा है कि देखिए, मुझे केस करना आप पड़ेगा उन क्या लोगों है? पे। जी, आपका ये क्या है? आपका मजहब क्या है?
अरे छोड़ दो सारा हमारा मूड खराब मजहब, कर दिया नहीं साहिल नहीं, भाई। तुम्हारा मजहब आप तुम एक्स मुस्लिम तौबा लगाते तौबा हो। देखिए तौबा, एक्स मुस्लिम सारा का मूड कॉन्सेप्ट खराब मैंने कर कभी नहीं दिया। सुना है चलो जी। राशिद मैंने एक एक्स काम मुस्लिम का करो, एक जी मिनट राशिद, एक काम करना, अपनी माँ के पास जाना, अपनी बहन होगी ना, बोलना कि अम्मी जान, आप अप्पी जान, आपके जो मतलब एक आपने जुड़वा बच्चे पैदा किए, उसके बाद दूसरा हम लॉट जब आप आदम पैदा अलैहिस्सलाम के करोगे जमाने में तो नहीं जी अरे रहे, और वक्त के साथ जो है मतलब ना अच्छा लॉ बदल जाता है मतलब मेरे भाई। मतलब अगर राशिद आपको राशिद कानून का राशिद थोड़ा भी इल्म राशिद होगा, राशिद कस्टम्स का इल्म राशिद होगा, तो वक्त के साथ चेंज होता राशिद राशिद, अगर आप हजरत है। आदम के जमाने में होते तो अपनी बहन से करते ना शादी? जो दूसरे टाइम पे होते बेशक करता। अगर आदम करते ना, अलैहिस्सलाम के हम भी जमाने में स्त्री भी होता करते ना, तो, हम आदम भी स्त्री अलैहिस्सलाम भी के करते ना, जमाने में होता तो, समझ रहे, आप तो बात घुमा बहन रहे के भाई। साथ बहन आप के पता साथ है हम भी भाई, स्त्री भी आप ना करते कोई ना। रेफरेंस नहीं दे रहे, आप जो है ना सिर्फ ना मिस यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी सुनो 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 जी। राशिद, यानी अगर अल्लाह जो हजरत आदम के जमाने में जो कानून लाए थे, अगर हाँ रसूलुल्लाह को भी देते कि आप अपनी जुड़वा जो दूसरे लॉट में पैदा होंगे आपके बच्चे, क्योंकि वैसे भी मुसलमानों के लिए रसूलुल्लाह ने तो कहा है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, है ना, जी रोक टोक तो जी, है ही नहीं। तो नहीं है। अगर रसूलुल्लाह के जमाने में भी अगर अल्लाह ये कानून दे देते कि आप अपनी दूसरे लॉट वाली बहन से आप शादी कर सकते हो, तो आप करते ना? देखिए ऐसा नहीं आया है, और ये जो है ना वक्त के आया हिसाब से आने की आता है बात कोई नहीं भी है, कानून। अरे भाई आप अल्लाह थोड़ी ना है, आप अल्लाह नहीं है भाई ना, मैं सिर्फ आप इतना अल्लाह पूछ है रहा क्या जो हूँ। आप क्वेश्चन कर रहे हो? मैं हम अल्लाह पूछ को रहा हूँ, आजमाने अच्छा के लिए नहीं नहीं कर, आए, देखो अल्लाह हमें आजमाने के लिए मेरे भेजा भाई, है सुनो मेरी बात सुनो, देखो जी। सिंपल सा सवाल और जवाब कैसे होता है, ये कौन हराम खोर है यार, इतने कॉल कर रहा है, रुको इसको ब्लॉक करता हूं मैं। हद है जी यार, भाईजान। स्ट्रीम चालू है और ये तो व्हाट्सएप अच्छा पे कॉल राशिद किए भाई, जा रहा है। अगर आप नबी के दौर में होते और आप सहाबा होते, हुजूर की गैंग में शामिल होते, तो आपके लिए बड़ी फख्र की बात होती राशिद जी भाई। बेशक। जी बिल्कुल। जी तो जी हुजूर आपकी बेटी को अगर मांगते 56 साल की, 60 साल की जी। उम्र में, 52 साल की उम्र में, तो आप देना पसंद करते अपनी 6 साल की बेटी को? भाई मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ वो क्या बोलती है, अगर उसके तरफ से हाँ तो हाँ। 6 साल की बेटी मतलब जब हजरत हजरत अबू बकर ने तो पूछा नहीं था, क्या बात कर और रहे भाई, 6 साल की बेटी नहीं पूछा था। ये समझ सकती। जी अरे ये क्या कौन सी कहते बड़ी जी हैं? बात है यार, साजिद भाई, ये कौन सी बड़ी बात है जब ये इंसान जो है टट्टी खाने के लिए रेडी है, मुंह बोली बेटी के साथ जो है हम बिस्तरी करने के लिए रेडी है, और अगर हजरत आदम के जमाने में होता तो ये अपनी बहन के साथ शादी करके हम बिस्तरी करने के लिए रेडी है, उसके लिए 6 साल की बच्ची के साथ गेम करना या देना, इसमें क्या बड़ी बात नहीं, होती? ये बंदा राशिद बोल भाई क्या रहा आप है, ये बंदा बोल रहा है कि वो 6 साल की आप बच्ची से पूछता, उसकी रजामंदी लेता भाई, हाँ 6 साल की बच्ची से। आज के 6 साल की बच्ची और उस वक्त के 6 साल की बच्ची में फर्क है या नहीं है? नहीं मतलब है, क्या है, बताएं। फर्क था क्या? एक मिनट एक कितना मिनट आज एक कितना जो मिनट हम फर्क है था? 20 साल के हैं, भाई सुनिए मेरे सी है भाई ना, सी जी, सी आज हम सुन 20 सुन साल के सुन उस वक्त के 20 साल सुन में